صحیح بخاری کتاب خرچ کرنے کا بیان باب بال بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد مال۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر۔ اور اس نے کہا کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد مال ہے۔ حدیث نمبر 5351۔ ترجمہ: ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن یزید انصاری سے سنا، اور انہوں نے ابو مسعود انصاری سے۔ عبداللہ بن یزید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جوڑو بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب خرچ کرنے کا بیان باب بال بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد مال۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر۔ اور اس نے کہا کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد مال ہے۔ حدیث نمبر 5352۔ ترجمہ: ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو الزناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کر تو میں تجھ کو دے جاؤں گا۔ صحیح بخاری کتاب خرچ کرنے کا بیان باب بال بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد مال۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر۔ اور اس نے کہا کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد مال ہے۔ حدیث نمبر 5353۔ ترجمہ: ہم سے یحییٰ بن قزیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے سور بن زید نے، ان سے ابو الگیس سالم نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیواؤں اور مساکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کتاب خرچ کرنے کا بیان باب بال بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ ضرورت سے زائد مال۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر۔ اور اس نے کہا کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد مال ہے۔ حدیث نمبر 5354۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، انہیں سعید بن ابراہیم نے، ان سے عامر بن سعد نے، انہوں نے سعد سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر آدھے کی کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں؟ فرمایا تہائی کی کر دو، اور تہائی بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے، اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا، تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے کفار نقصان اٹھائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب خرچ کرنے کا بیان باب اہل ویل کو خرچ دینا واجب ہے۔ حدیث نمبر 5355۔ ترجمہ: ہم سے عمرو بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ہریرہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ دینے والے کا نیچے کے لینے والے کے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے، غلام کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو، بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کسی اور پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ، کیا یہ آخری ٹکڑا بھی کہ جورو کہتی ہے آخر تک آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ ابو ہریرہ کی خود اپنی سمجھ ہے۔ صحیح بخاری کتاب خرچ کرنے کا بیان باب اہل ویل کو خرچ دینا واجب ہے۔
حدیث نمبر 5356۔ ترجمہ۔ ہمسے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے لیس بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبدال الرحمن بن خالد بن مسافر نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن النسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہیں، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ صحیح بخاری۔ کتاب خرچ کرنے کا بیان۔ باب اپنے اہل ویل کے لیے مرد کا 1 سال کا خرچ جمع کرنا اور اہل ویل کا خرچ کس طرح ہے۔ حدیث نمبر 5357۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو وکی نے خبر دی، ان سے ابن عیینہ نے کہا کہ مجھ سے معمر نے بیان کیا کہ ان سے سوری نے پوچھا کہ تم نے ایسے شخص کے بارے میں بھی سنا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا یا سال سے کم کا خرچ جمع کر لے؟ معمر نے بیان کیا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے میں ایک حدیث ابن شہاب نے ہم سے بیان کی تھی، ان سے مالک بن اوس نے اور ان سے ابن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے باغ کی کھجوریں بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کی روزی جمع کر دی کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب خرچ کرنے کا بیان۔ باب حدیث نمبر 5358۔ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان والوالدات یرزان اولادہن حولین کاملین لمن ارادان یتمرزیا، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، یہ مدت اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے۔ سے ارشاد بما تعملون بصیر تک۔ اور سورۃ الاحقاف میں فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑنا 30 مہینوں میں ہوتا ہے۔ اور سورۃ اطلاق میں فرمایا وَن تَأْثَرْتُمْ فَاسْتَرْزَا لا آخری ستارہ لَنْفِقْ سیا من ستا ومن قدر علیہ رزقا کے، اور اگر تم میاں بیوی آپس میں ضد کرو گے تو بچے کو دودھ کوئی دوسری عورت پلائے گی۔ وسعت والے کو خرچ دودھ پلانے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہیے، اور جس کی آمدنی کم ہو اسے چاہیے کہ اسے اللہ نے جتنا دیا ہو اس میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بعد اسر یسرا تک۔ اور یونس نے زہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ میں اس کے بچہ کی وجہ سے باپ کو تکلیف پہنچائے، اور اس کی صورت یہ ہے مثلاً کہ میں کہہ دے کہ میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی، حالانکہ اس کی غذا بچے کے زیادہ موافق ہے، وہ بچہ پر زیادہ مہربان ہوتی ہے، اور دوسرے کے مقابلہ میں بچہ کے ساتھ وہ زیادہ لطف و نرمی کر سکتی ہے، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بچہ کو دودھ پلانے سے اس وقت بھی انکار کر دے جبکہ بچہ کا والد اسے نان نفقہ میں اپنی طرف سے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ باپ اپنے بچہ کی وجہ سے منہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت یہ ہے مثلاً باپ منہ کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ مخواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کرے۔ البتہ اگر ماں اور باپ اپنی خوشی سے کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کریں تو دونوں پر کچھ گناہ نہ ہوگا، اور اگر وہ والد اور والدہ دونوں اپنی رضامندی اور مشورہ سے بچہ کا دودھ چھڑانا چاہیں تو پھر ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا، وہ ابھی مدت رخصت باقی ہو، فصال کے معنی دودھ چھڑانا۔ صحیح بخاری۔ کتاب خرچ کرنے کا بیان۔ باب کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اس عورت کے اور بچے کے خرچ کا بیان۔ حدیث نمبر 5359۔ ترجمہ۔ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس بن یزید نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں روح نے خبر دی، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ ہند بن عتبہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سفیان ان کے شوہر بہت بخیل ہیں، تو کیا میرے لیے اس میں کوئی گناہ ہے اگر میں ان کے مال میں سے اس کے پیٹھ پیچھے اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری۔ کتاب خرچ کرنے کا بیان۔ باب کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اس عورت کے اور بچے کے خرچ کا بیان۔ حدیث نمبر 5360۔ ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر بن راشد نے، ان سے حمام بن عیینہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر دستور کے مطابق اللہ کے راستہ میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری۔ کتاب خرچ کرنے کا بیان۔ باب عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں کام کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5361۔ ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے کہا کہ مجھ سے حکم نے بیان کیا، ان سے ابن ابی لیلہ نے، ان سے علی نے بیان کیا کہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔
इन्हें मालूम हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुलाकात ना हो सकी, इसलिए आयशा से उसका जिक्र किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आयशा ने आपसे इसका तज़किरा किया। अली ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। रात के वक्त हम उस वक्त अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे, हमने उठना चाहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों जिस तरह थे उसी तरह रहो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और फातिमा के दरमियान बैठ गए। मैंने आपके कदमों की ठंडक अपने पीठ पर महसूस की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दोनों ने जो चीज़ मुझसे मांगी है, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर एक बात ना बता दूं? जब तुम रात के वक्त अपने बिस्तर पर लेट जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अलहमद अल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए लौंडी गुलाम से बेहतर है। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब औरत के लिए खादिम रखने का बयान। हदीस नंबर 5362। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे उबैदुल्लाह बिन अबी यजीद ने बयान किया, इन्होंने मुजाहिद से सुना, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी लेला से सुना, उनसे अली बिन अबी तालिब बयान करते थे कि फ़ातिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई थीं और आपसे एक खादिम मांगा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ ना बता दूँ जो तुम्हारे लिए इससे बेहतर हो? सोते वक्त 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अलहमद अल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। सुफियान बिन ईना ने कहा कि उनमें से एक कलिमा 34 बार कह ले। अली ने कहा कि फिर मैंने उन कलमों को कभी नहीं छोड़ा। उनसे पूछा गया, जंग सिफीन की रातों में भी नहीं? कहा कि सिफीन की रातों में भी नहीं। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब मर्द का अपने अहल वैयल की खिदमत करने का बयान। हदीस नंबर 5363। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हुक्म बिन अतबा ने, उनसे इब्राहिम ने, उनसे असूद बिन यजीद ने कि मैंने आयशा से पूछा कि घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। उम्मुल मोमिनीन ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम किया करते थे, फिर आप जब अज़ान की आवाज़ सुनते तो बाहर चले जाते थे। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब अगर शौहर खर्च ना दे तो औरत को इख्तियार है कि इसको बताए बगैर ज़रूरत के मुताबिक इतना खर्च निकाल ले कि जो इस बच्चों के लिए काफ़ी हो। हदीस नंबर 5364। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने कहा कि मुझे मेरे वालिद रू ने खबर दी और इन्हें आयशा ने कि हिंद बिन ततबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आबू सुफियन उनके शौहर बखील हैं और मुझे इतना नहीं देते जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो सके। हाँ, अगर मैं उनकी लाइल्मी में उनके माल में से ले लूँ तो काम चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दस्तूर के मुवाफिक इतना ले सकती हो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए काफ़ी हो सके। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब बीवी का अपने शौहर के माल की हिफाजत करना और नफ़क़ा का बयान। हदीस नंबर 5365। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ताउस और अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन पर सवार होने वाली औरतों में, यानी अरब की औरतों में, बेहतरीन औरतें कुरैशी औरतें हैं। दूसरे रावी इब्न ताउस ने बयान किया कि कुरैश की सालेह नेक औरतें सिर्फ लफ्ज़ कुरैशी औरतों के बजाय बच्चे पर बचपन में सबसे ज़्यादा मेहरबान और अपने शौहर के माल की सबसे ज़्यादा हिफाजत करने वाली होती हैं। मावी और इब्न अब्बास ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही रिवायत की है। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब औरत को दस्तूर के मुताबिक पहनाने का बयान। हदीस नंबर 5366। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान कहा कि मुझे अब्दुल मलिक बिन मैसरा ने खबर दी, कहा कि मैंने ज़ैद बिन वहब से सुना और उनसे अली ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरा कपड़े का जोड़ा हदिया में दिया तो मैंने इसे खुद पहन लिया। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर खफली देखी तो मैंने इसे फाड़कर अपनी औरतों में तकसीम कर दी। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब बच्चों की खिदमत में औरत का अपने शौहर की मदद करने का बयान। हदीस नंबर 5367। तर्जुमा।
हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने, उनसे इमरू ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि मेरे वालिद शहीद हो गए और इन्होंने 7 लड़कियां छोड़ी। या रावी ने कहा कि 9 लड़कियां। चुनाचा मैंने एक पहले की शादी शुदा औरत से निकाह किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि जाबिर, तुमने शादी की है? मैंने कहा जी हाँ। फरमाया कुंवारी से या बयाही से? मैंने अर्ज़ किया कि बयाही से। फरमाया तुमने किसी कुंवारी लड़की से शादी क्यों ना की? तुम इसके साथ खेलते और वो तुम्हारे साथ खेलती, तुम इसके साथ हंसी मजाक करते और वो तुम्हारे साथ हंसी करती। जाबिर ने बयान किया कि इस पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब्दुल्लाह, मेरे वालिद शहीद हो गए और इन्होंने कई लड़कियां छोड़ी हैं, इसलिए मैंने ये पसंद नहीं किया कि उनके पास उन्हीं जैसी लड़की ब्याह लाऊं, इसलिए मैंने एक ऐसी औरत से शादी की है जो उनकी देखभाल कर सके और उनकी इस्लाह का ख्याल रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे। या रावी को शक था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खीरा फरमाया यानी अल्लाह तुमको खैर अता करे। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब तंगदस्त का अपने अहल वैल पर खर्च करने का बयान। हदीस नंबर 5368। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, कहा हमसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे हमीद बिन अबदाल रहमन ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब आए और कहा कि मैं तो हलाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर क्या बात हुई? इन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी से रमज़ान में हमबस्तरी कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक गुलाम आज़ाद कर दो, ये कफ़ारा हो जाएगा। इन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास कुछ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 2 महीने मुतवातिर रोज़े रख लो। इन्होंने कहा कि मुझ में उसकी भी ताकत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 60 मसकीनों को खाना खिलाओ। इन्होंने कहा कि इतना भी मेरे पास नहीं है। इसके बाद आपके पास एक टोकरा लाया गया जिसमें खजूरें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि मसला पूछने वाला कहाँ है? इन साहब ने अर्ज़ किया मैं यहाँ हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो उसे अपनी तरफ से सदका कर देना। इन्होंने कहा अपने से ज़्यादा ज़रूरतमंद पर। या रसूल अल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, उन दोनों पथरीले मैदानों के दरमियान कोई घराना हमसे ज़्यादा मोहताज नहीं है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और आपके मुबारक दंत दिखाई देने लगे और फरमाया फिर तुम ही इसके ज़्यादा मुस्तहिक हो। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब आयत वल्ली अलूरिस मसल ज़लक की तफसीर और किया औरत पर कोई चीज़ है और अल्लाह ताला के इस कौल वज़रब अल्लाह मुसलरजली ने हदहमा अबकम। सिरात मुस्तकीम की तफसीर। हदीस नंबर 5369। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे वहीब ने बयान किया, इन्हीं हिशाम ने खबर दी, इन्हीं उनके वालिद ने, इन्हीं ज़ैनब बिन तबी सलमा ने कि सलमा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मुझे अबू सलमा उनके पहले शौहर के लड़कों के बारे में सवाब मिलेगा अगर मैं इन पर खर्च करूं? मैं इन्हें इस मुहताजी में देख नहीं सकती, वो मेरे बेटे ही तो हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें हर इस चीज़ का सवाब मिलेगा जो तुम उन पर खर्च करोगी। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब आयत वल्ली अलूरिस मसल ज़लक की तफसीर और किया औरत पर कोई चीज़ है और अल्लाह ताला के इस कौल वज़रब अल्लाह मुसलरजली ने हदहमा अबकम। सिरात मुस्तकीम की तफसीर। हदीस नंबर 5370। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि हिंद ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आबू सुफियान बखील हैं। अगर मैं उनके माल से इतना उनसे पूछे बगैर ले लिया करूं जो मेरे और मेरे बच्चों को काफ़ी हो तो क्या इसमें कोई गुनाह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दस्तूर के मुताबिक ले लिया करो। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि जिस शख्स ने कोई कर्ज छोड़ा या बचे छोड़े तो मेरे ज़िम्मा हैं। हदीस नंबर 5371। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू सलमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी ऐसे शख्स का जनाजा लाया जाता जिस पर कर्ज होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त फरमाते कि मरने वाले ने कर्ज की अदायगी के लिए तरका छोड़ा है या नहीं।
अगर कहा जाता कि इतना छोड़ा है जिससे उनका कर्ज अदा हो सकता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज पढ़ते, वरना मुसलमानों से कहते कि अपने साथी पर तुम ही नमाज पढ़ लो। फिर जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुतूहत के दरवाज़े खोल दे तो फरमाया कि मैं मुसलमानों से उनकी खुद अपनी ज़ात से भी ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए उन मुसलमानों में जो कोई वफ़ात पाए और कर्ज छोड़े तो इसकी अदायगी की ज़िम्मेदारी मेरी है, और जो कोई माल छोड़े वो इसके वरसा का है। सही बुखारी। किताब खर्च करने का बयान। बाब दाया वगैरह से दूध पिलाने का बयान। हदीस नंबर 5372। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं ने खबर दी, उनको अबू सलिमा की साहिबजादी ज़ैनब ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा हबीबा ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी बहन अज़ा बिन तबी सुफियान से निकाह कर लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और तुम उसे पसंद भी करोगी कि तुम्हारी बहन तुम्हारी सौकन बिन जाए। मैंने अर्ज़ किया, जी हम इससे खाली तो मैं अब भी नहीं हूँ, और मैं पसंद करती हूँ कि अपनी बहन को भी भलाई में अपने साथ शरीक करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि ये मेरे लिए जायज़ नहीं है, दो बहनों को एक साथ निकाह में जुमा करना। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वालला इस तरह की बातें हो रही हैं कि आप दर्रा बिन तबी सलमा से निकाह का इरादा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि सलमा की बेटी। जब मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरी परवरिश में ना होती जब भी वो मेरे लिए हलाल नहीं थी, वो तो मेरे रज़ाई भाई की लड़की है। मुझे और अबू सलिमा को सोबिया ने दूध पिलाया था, बस तुम मेरे लिए अपनी लड़कियों और बहनों को ना पेश किया करो। और शोएब ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने और उनसे रू ने कहा कि सोबिया को अबू लहब ने आज़ाद किया था। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि हमने तुम्हें जो रिज़्क़ हलाल दिया है इसमें से खाओ, और अल्लाह ताला का कौल कि अपनी पाक कमाई में से खर्च करो, और अल्लाह ताला का कौल कि पाक चीज़ों में से खाओ और नेक काम करो, मैं तुम्हारे कामों को जानने वाला हूँ। हदीस नंबर 5373। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं मंसूर ने, उनसे अबू वाइल ने बयान किया, और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखे को खिलाओ पिलाओ, बीमार की मिजाज परसी करो और कैदी को छुड़ाओ। सुफियान सोरी ने कहा कि हदीस में लफ्ज़ानी से मुराद कैदी है। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि हमने तुम्हें जो रिज़्क़ हलाल दिया है इसमें से खाओ, और अल्लाह ताला का कौल कि अपनी पाक कमाई में से खर्च करो, और अल्लाह ताला का कौल कि पाक चीज़ों में से खाओ और नेक काम करो, मैं तुम्हारे कामों को जानने वाला हूँ। हदीस नंबर 5374। तर्जुमा। हमसे यूसुफ बिन ईसा मरूज़ी ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फजील ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू हाज़म सलमा बिन अशजई ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी ऐसा ज़माना नहीं गुज़रा कि कुछ दिन बराबर इन्होंने पेट भर के खाना खाया हो, और उसी सनद से। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि हमने तुम्हें जो रिज़्क़ हलाल दिया है इसमें से खाओ, और अल्लाह ताला का कौल कि अपनी पाक कमाई में से खर्च करो, और अल्लाह ताला का कौल कि पाक चीज़ों में से खाओ और नेक काम करो, मैं तुम्हारे कामों को जानने वाला हूँ। हदीस नंबर 5375। तर्जुमा। अबू हाज़म से रिवायत है कि उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि फ़ाक़ा की वजह से मैं सख्त मशक्क़त में मुब्तला था, फिर मेरी मुलाकात उमर बिन ख़िताब से हुई, और इनसे मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ने के लिए कहा। इन्होंने मुझे वो आयत पढ़कर सुनाई और फिर अपने घर में दाखिल हो गए। इसके बाद मैं बहुत दूर तक चलता रहा। आखिर मशक्क़त और भूख की वजह से मैं मुँह के बल गिर पड़ा। अचानक मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सर के पास खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हरीरा। मैंने कहा हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, तैयार हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया। आप समझ गए कि मैं किस तकलीफ़ में मुब्तला हूँ। फिर आप मुझे अपने घर ले गए और मेरे लिए दूध का एक बड़ा प्याला मंगवाया। मैंने उसमें दूध पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोबारा पियो अबू हरीरा। मैंने दोबारा पिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और पियो। मैंने और पिया, यहाँ तक कि मेरा पेट भी प्याला की तरह भरपूर हो गया। अबू हरीरा ने बयान किया कि फिर उम्र से मिला और उनसे अपना सारा वाक़या बयान किया और कहा कि ए उम्र,
अल्लाह ताला ने उसे इस ज़ात के ज़रिए पूरा करा दिया जो आपसे ज़्यादा मुस्तहिक थी। अल्लाह की कसम, मैंने तुमसे आयत पूछी थी हालांकि मैं उसे तुमसे भी ज़्यादा बेहतर तरीक़ा पर पढ़ सकता था। उम्र ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मैंने तुमको अपने घर में दाखिल कर ली होता और तुमको खाना खिला देता तो लाल लाल उम्दा ऊँट मिलने से भी ज़्यादा मुझको खुशी होती। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब खाने पर बसमिल्लाह पढ़ने और दाएं हाथ से खाने का बयान। हदीस नंबर 5376। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, कहा कि मुझे वलीद बिन कसीर ने खबर दी, इन्होंने वहब बिन कीसान से सुना, इन्होंने उम्र बिन अबी सलमा से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैं बच्चा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था और खाते वक्त मेरा हाथ बर्तन में चारों तरफ घूमा करता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि बेटे, बसमिल्लाह पढ़ लिया करो, दाहिने हाथ से खाया करो और बर्तन में वहन से खाया करो जो जगह तुझसे नज़दीक हो। चुनाचा इसके बाद में हमेशा उसी हिदायत के मुताबिक खाता रहा। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब अपने सामने से खाने का बयान और अनस रिज़्क़ ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लो और हर शख्स को अपने आगे से खाना चाहिए। हदीस नंबर 5377। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ओवैसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मोहम्मद बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इमरू बिन हलहला दैली ने बयान किया, उनसे वहब बिन कीसान अबू नईम ने बयान किया, उनसे उम्र बिन अबी सलमा ने, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा सलमा के अबू सलमा से बेटे हैं, बयान किया कि एक दिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाया और बर्तन के चारों तरफ से खाने लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अपने नज़दीक से खा। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब अपने सामने से खाने का बयान और अनस रिज़्क़ ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लो और हर शख्स को अपने आगे से खाना चाहिए। हदीस नंबर 5378। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तंसी ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, उनसे अबू नईम वहब बिन कीसान ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना लाया गया, आपके साथ आपके रबीब उम्र बिन अबी सलमा भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बसमिल्लाह पढ़ और अपने सामने से खा। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो कि प्याले में चारों तरफ ढूंढे जबकि उसके साथी को नागवार ना गुजरे। हदीस नंबर 5379। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि एक दर्जी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने की दावत की जो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया था। अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में भी गया, मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला में चारों तरफ कद्दू तलाश करते थे खाने के लिए। बयान किया कि उसी दिन से कद्दू मुझको भी बहुत भाने लगा। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब खाने वगैरह में दाएं हाथ से काम करने का बयान। उम्र बिन अबी सलमा ने बयान किया कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दाएं हाथ से खा। हदीस नंबर 5380। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्हीं अशत ने, इन्हीं उनके वालिद ने, इन्हीं मुसर्रुख ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तक मुमकिन होता पाकी हासिल करने में, जूता पहनने और कनघा करने में दाहिनी तरफ से अबतदा करते। अशत इस हदीस का रावी जब वासित शहर में था तो इसने इस हदीस में यूँ कहा था कि हर एक काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी तरफ से अबतदा करते। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो पेट भर कर खाना खाए। हदीस नंबर 5381। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अलैहि ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने, इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, इन्होंने बयान किया कि अबू तुल्हा ने अपनी बीवी सलीम से कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में ज़ौफ़ व नक़ाहत को महसूस किया है और मालूम होता है कि आप फ़ाक़ा से हैं। क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? चुनाचा इन्होंने जिलों की चंद रोटियां निकालीं, फिर अपना दोपट्टा निकाला और इसके एक हिस्सा में रोटियों को लपेटकर मेरे यानी अनस के कपड़े के नीचे छुपा दिया और एक हिस्सा मुझे चादर की तरह ओढ़ा दिया, फिर मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। बयान किया कि मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपको मस्जिद में पाया और आपके साथ सहाबा थे।
मैं उन सब हजरात के सामने जाकर खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ऐ अनस, तुम्हें अबू तुल्हा ने भेजा होगा। मैंने अर्ज़ की जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खाने के साथ? मैंने अर्ज़ की जी हाँ। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया कि खड़े हो जाओ। चुनाचा आप रवाना हुए। मैं सबके आगे आगे चलता रहा। जब अबू तुल्हा के पास वापस पहुंचा तो इन्होंने कहा, सलीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर तशरीफ़ लाए हैं, हालांकि हमारे पास खाने का इतना सामान नहीं जो सबको काफ़ी हो सके। सलीम इस पर बोली कि अल्लाह और इसका रसूल खूब जानते हैं। बयान किया कि फिर अबू तुल्हा इस्तक़बाल के लिए निकले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। इसके बाद अबू तुल्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ मुतवज्जह हुए और घर में दाखिल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलीम, जो कुछ तुम्हारे पास है वो यहाँ लाओ। सलीम रोटी लाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इसका चूरा कर ली गया। सलीम ने अपने घी के डब्बा में से घी निचोड़ कर इसका मलीदा बना लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की जो कुछ अल्लाह ताला ने आपसे दुआ करानी चाहिए। इसके बाद फरमाया कि 10 आदमियों को खाने के लिए बुला लो। चुनाचा 10 सहाबा को बुलाया। सब ने खाया और शकमसैर होकर बाहर चले गए। फिर फरमाया कि 10 को और बुला लो। इन्हें बुलाया गया और सब ने शकमसैर होकर खाया और बाहर चले गए। फिर आपने फरमाया कि 10 सहाबा को और बुला लो। फिर 10 सहाबा को बुलाया गया और इन लोगों ने भी खूब पेट भर कर खाया और बाहर तशरीफ़ ले गए। इसके बाद फिर 10 सहाबा को बुलाया गया। इस तरह तमाम सहाबा ने पेट भर कर खाया। उस वक्त उसी सहाबा की जमात वहाँ मौजूद थी। सही बुखारी किताब खाने का बयान, बाब उस शख्स का बयान जो पेट भर कर खाना खाए। हदीस नंबर 5382। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि अबू उस्मान नहदी ने भी बयान किया और उनसे अबदाल रहमान बिन अबी बकर ने बयान किया कि हम 130 आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम में से किसी के पास खाना है। एक साहब ने अपने पास से एक सा के करीब आटा निकाला, उसे गूंद लिया गया। फिर एक मशरिक लंबा तरंगा अपनी बकरियों हानकता हुआ इधर आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त फरमाया कि ये बेचने की ही या अतिया ही या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतिया के बजाय हबा फरमाया। उस शख्स ने कहा कि नहीं बल्कि बेचने की ही। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे एक बकरी खरीदी, फिर ज़बा की गई और आपने उसकी कलीजी भूना जाने का हुक्म दिया और कसम अल्लाह की 130 लोगों की जमात में कोई शख्स ऐसा नहीं रहा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी की कलीजी का एक एक टुकड़ा काट कर ना दिया हो, मगर वो मौजूद था तो उसे वहीं दे दिया और अगर वो मौजूद नहीं था तो इसका हिस्सा महफूज रखा। फिर इस बकरी के गोश्त को पका कर 2 बड़े को नरम में रखा और हम सब ने उनमें से पेट भर कर खाया। फिर भी दोनों को नरम में खाना बच गया तो मैंने इसे मुँह पर लाद लिया। अबदाल रहमान रावी ने ऐसा ही कोई कलिमा कहा। सही बुखारी किताब खाने का बयान, बाब उस शख्स का बयान जो पेट भर कर खाना खाए। हदीस नंबर 5383। तर्जुमा हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम कस्साब ने बयान किया, कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, कहा हमसे मंसूर बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे उनकी वालिदा सफ़ी बिन शबीह ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। इन दिनों हम पानी और खजूर से सैर हो जाने लगे थे। सही बुखारी किताब खाने का बयान, बाब अल्लाह ताला का कौल कि ना तो अंधे पर कोई हरज है और ना लंगड़े पर और ना मरीज़ पर कोई हरज है। आखिर आयत ललकम तकलून तक। हदीस नंबर 5384। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा यही बिन सईद अंसारी ने बयान किया, इन्होंने बशीर बिन यासार से सुना, कहा कि हमसे सौयद बिन नोमान ने बयान किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ सना 7 2 चश्मे में निकले। जब हम मकाम सहबा पर पहुँचे, यही ने बयान किया कि सबा खैबर से दोपहर की राह पर है, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तलब फरमाया, लेकिन सत्तू के सिवा और कोई चीज़ नहीं लाई गई। फिर हमने उसी को सूखा फानिक लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब फरमाया और कली की, हमने भी कली की। इसके बाद आपने हमें मगरिब की नमाज पढ़ाई और वज़ू नहीं किया मगरिब के लिए, क्योंकि पहले से बावज़ू थे। सुफियान ने बयान किया कि मैंने यही से इस हदीस में यूँ सुना कि आपने ना सत्तू खाते वक्त वज़ू किया ना खाने से फारिग होकर। सही बुखारी
किताब खाने का बयान। बाब पतली रोटी और ख़ान व सफ़रा पर खाने का बयान। हदीस नंबर 5385। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, उनसे हमाम ने बयान किया, उनसे क़तादा ने कहा कि हम अनस की खिदमत में बैठे हुए थे, उस वक्त उनका रोटी पकाने वाला खादिम भी मौजूद था। इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी चपाती मीदा की रोटी नहीं खाई और न सारी दम पुख्ता बकरी खाई, यहाँ तक कि आप अल्लाह से जा मिले। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब पतली रोटी और ख़ान व सफ़रा पर खाने का बयान। हदीस नंबर 5386। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे माज़ बिन हश्शाम ने बयान किया, कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे यूनुस ने। अली बिन अब्दुल्लाह अल-मदीनी ने कहा कि ये यूनुस इस्काफ़ हैं, ना कि यूनुस बिन उबैद बसरी। उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि मैं नहीं जानता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तशतरी रखकर एक वक्त मुख्तलिफ़ क़स्म का खाना खाया हो, और ना कभी आपने पतली रोटियाँ चपातियाँ खाएँ, और ना कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेज़ पर खाया। क़तादा से पूछा गया कि फिर किस चीज़ पर आप खाते थे? कहा कि आप सफ़रा आम दस्तरख़्वान पर खाना खाया करते थे। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब पतली रोटी और ख़ान व सफ़रा पर खाने का बयान। हदीस नंबर 5387। तर्जुमा। हमसे सईद बिन मरियम ने बयान किया, कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने ख़बर दी, कहा मुझको हमीद ने ख़बर दी, और इन्होंने अनस से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी से निकाह के बाद उनके साथ रास्ते में क़याम किया और मैंने मुसलमानों को आपके वलीमा की दावत में बुलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरख़्वान बिछाने का हुक्म दिया और वो बिछाया गया, फिर आपने इस पर खजूर पनीर और घी डाल दिया। और इमरू बिन अबी इमरू ने कहा, उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ी के साथ सोहबत की, फिर एक चमड़े के दस्तरख़्वान पर खजूर घी पनीर मिलाकर बना हुआ हलवा रखा। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब पतली रोटी और ख़ान व सफ़रा पर खाने का बयान। हदीस नंबर 5388। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको अबू मुआविया ने ख़बर दी, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और वहब बिन कीसान ने बयान किया कि अहल शाम हुज्जाज बिन यूसुफ के फ़ौजी शाम के लोग अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को आर दिलाने के लिए कहने लगे, या इब्न ज़ात अल-नताक़ी ने दो कमरबंद वाली के बेटे और उनकी वालिदा असमा ने कहा, ए बेटे, ये तुम्हीं दो कमरबंद वाली की आर दिलाते हैं, तुम्हें मालूम है वो कमरबंद किया थे? वो मेरा कमर बंद था जिसके मैंने दो टुकड़े कर दिए थे, और एक टुकड़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन का मुंह बंधा था, और दूसरे से दस्तरख़्वान बनाया, इसमें तोशा लपेटा। वहब ने बयान किया कि फिर जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को अहल शाम दो कमर बंद वाली की आर दिलाते थे, तो वो कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये बेशक सच है, और वो ये मिसरा पढ़ते तलक शकात ज़ाहिर इनकार रहा। ये तो वैसा तना है जिसमें कुछ ऐब नहीं है। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब पतली रोटी और ख़ान व सफ़रा पर खाने का बयान। हदीस नंबर 5389। तर्जुमा। हमसे अबू नुमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अबू बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने, और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि इब्न अब्बास की खाला हफीद बिन हारिस बिन हज़न ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी पनीर और साहिना हदिया के तौर पर भेजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बुलाया और इन्होंने आपके दस्तरख़्वान पर साहिना को खाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हाथ भी नहीं लगाया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नापसंद करते हैं। लेकिन अगर साहिना हराम होता तो आपके दस्तरख़्वान पर खाया ना जाता और ना आप इन्हीं खाने के लिए फरमाते। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब सतू का बयान। हदीस नंबर 5390। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे यही बिन सईद अंसारी ने, उनसे बशीर बिन यासार ने, इन्हीं सैयद बिन नोमान ने ख़बर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम सहबा में थे। वो खैबर से एक मंजिल पर है। नमाज का वक्त करीब था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तलब फरमाया, लेकिन सतू के सिवा और कोई चीज़ नहीं लाई गई। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फानिक लिया और हमने भी फानका, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब फरमाया और कली की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और हमने भी आपके साथ नमाज पढ़ी, और आपने इस नमाज के लिए नया वज़ू नहीं किया। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ नहीं खाते थे जब तक कि आपसे बयान ना किया जाता और आपको मालूम ना हो जाता कि क्या है। हदीस नंबर 5391। तर्जुमा।
हमसे मोहम्मद बिन मकातिल अबुल हसन ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन याला ने खबर दी, कहा हमको यूनुस ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझे अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ अंसारी ने खबर दी, इन्हीं इब्न अब्बास ने खबर दी और इन्हीं खालिद बिन वलीद ने जो सैफ अल्लाह की तलवार के लक़ब से मशहूर हैं खबर दी कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन मैमुना के घर में दाखिल हुए। उम्मुल मोमिनीन उनकी और इब्न अब्बास की खाला हैं। उनके यहाँ बना हुआ साहिना मौजूद था जो उनकी बहन हफीदा बिन्त अल-हारिस नजद से लाई थीं। इन्होंने वो बना हुआ साहिना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ऐसा बहुत कम होता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खाने के लिए इस वक्त तक हाथ बढ़ाएं जब तक आपको उसके मुताल्लिक बता ना दिया जाए कि ये फ़लन खाना है, लेकिन इस दिन आपने बने हुए साहने के गोश्त की तरफ हाथ बढ़ाया। इतने में वहाँ मौजूद औरतों में से एक औरत ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता क्यों नहीं देती कि उस वक्त आपके सामने जो तुमने पेश किया है वो साहिना है, या रसूल अल्लाह। यह सुनकर आपने अपना हाथ साहिना से हटा लिया। खालिद बिन वलीद बोले कि या रसूल अल्लाह, किया साहिना हराम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन ये मेरे मुल्क में चूंकि नहीं पाया जाता इसलिए तबीयत पसंद नहीं करती। खालिद ने बयान किया कि फिर मैंने इसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे खाया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे थे। सही बुखारी किताब खाने का बयान बाब एक आदमी का खाना दो आदमियों को काफ़ी होता है। हदीस नंबर 5392। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी। दूसरी सनद इमाम बुखारी ने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमियों का खाना तीन के लिए काफ़ी है और तीन का चार के लिए काफ़ी है। सही बुखारी किताब खाने का बयान बाब मोमिन एक अंक में खाता है। इसमें अबू हरीरा रिज़्क़ की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5393। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, हमसे से अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे शोबा बिन हुज्जाज ने बयान किया, उनसे वाक़िद बिन मोहम्मद ने, उनसे नाफा ने बयान किया कि इब्न उमर इस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनके साथ खाने के लिए कोई मिस्कीन ना लाया जाता। एक मर्तबा में इनके साथ खाने के लिए एक शख्स को लाया कि उसने बहुत ज़्यादा खाना खाया। बाद में इब्न उमर ने कहा कि आइंदा उस शख्स को मेरे साथ खाने के लिए ना लाना। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मोमिन एक अंक में खाता और काफिर दो अंकी भर लेता है। सही बुखारी किताब खाने का बयान बाब मोमिन एक अंक में खाता है। इसमें अबू हरीरा रिज़्क़ की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5394। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको अब्दा बिन सुलेमान ने खबर दी, इन्हीं उबैदुल्लाह उमरी ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने और उनसे इब्न उमर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक अंक में खाता है और काफिर या मुनाफिक। अब्दा ने कहा कि मुझे यकीन नहीं कि उनमें से किसके मुताल्लिक उबैदुल्लाह ने बयान किया कि वो सातों अंकी भर लेता है, और इब्न बकीर ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे इब्न उमर और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस की तरह बयान फरमाया। सही बुखारी किताब खाने का बयान बाब मोमिन एक अंक में खाता है। इसमें अबू हरीरा रिज़्क़ की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5395। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने कि अबू नहीक बड़े खाने वाले थे। उनसे अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि काफिर सातों अंकों में खाता है। अबू नहीक ने इस पर अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखता हूँ। सही बुखारी किताब खाने का बयान बाब मोमिन एक अंक में खाता है। इसमें अबू हरीरा रिज़्क़ की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5396। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक अंक में खाता है और काफिर सातों अंकों में खाता है। सही बुखारी किताब खाने का बयान बाब मोमिन एक अंक में खाता है। इसमें अबू हरीरा रिज़्क़ की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5397। तर्जुमा
हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे एदी बिन साबित ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि एक साहब बहुत ज़्यादा खाना खाया करते थे, फिर वो इस्लाम लाए तो कम खाने लगे। इसका जिक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक अंतमी खाता है और काफिर सातों अंतमी खाता है। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब तकिया लगाकर खाने का बयान। हदीस नंबर 5398। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मुसर ने बयान किया, उनसे अली इब्न अल-अक़मर ने किमी ने अबू जहीफ़ा से सुना, इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टेक लगाकर नहीं खाता। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब तकिया लगाकर खाने का बयान। हदीस नंबर 5399। तर्जुमा। मुझसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमको जरीर ने खबर दी, इन्हीं मंसूर ने, इन्हीं अली इब्न अल-अक़मर ने और उनसे अबू जहीफ़ा ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से जो आपके पास मौजूद थे फरमाया कि मैं टेक लगाकर नहीं खाता। सही बुखारी। किताब खाने का बयान। बाब बुनी हुई चीज़ खाने का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि वो बना हुआ बिछड़ा लेकर आए। हदीस नंबर 5400। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबू अमामा बिन सहल ने और इन्हीं इब्न अब्बास ने कि खालिद बिन वलीद ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना हुआ साहिना पेश किया गया तो आप उसे खाने के लिए मुतवज्जह हुए। उसी वक्त आपको बताया गया कि ये साहिना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रोक लिया। खालिद ने पूछा, किया ये हराम है? फरमाया कि नहीं, लेकिन चूंकि ये मेरे मुल्क में नहीं होता इसलिए तबीयत उसे गवारा नहीं करती। फिर खालिद ने इसे खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। इमाम मालिक ने इब्न शहाब से ज़ब मुहन्नुज़ यानी बना हुआ साहिना ज़ब मुशवी की जगह मुहन्नुज़ नकल किया, दोनों लफ्ज़ों का एक मानी है।